जी, तो आई एम गोइंग टू टीच यू बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज द बिल्कुल स्क्रैच से मैं शुरू कर रहा हूं। इसमें क्या होता है बच्चों कि बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस करते हैं लोग, एक तो हमें उनका बिजनेस का मतलब पता होना चाहिए और बिजनेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी बिजनेसमैन करता है, एक जी, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड देन आई विल कम टू अकाउंटिंग। लेकिन मैं बिजनेस का मीनिंग बहुत लंबा नहीं लेना चाहता हूं बिकॉज ये बिजनेस की क्लास नहीं है, अकाउंटिंग की क्लास है। अब बच्चों, एक्टिविटी डन on regular basis for the purpose of earning profit is called business. Activity done on regular basis by a person who is called a businessman, and the basic motive is profit earning. You might have seen there are two types of generally the people, the source of livelihood. If you ask them कि if suppose I ask any one of you कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो मुझे दो ही जवाब मिलते हैं। कुछ बच्चे तो ये बोलते हैं कि सर मेरे पापा का बिजनेस है, क्योंकि वो जानते हैं बिजनेस किसको बोलते हैं। और कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर मेरे पापा बैंक में हैं, मेरे पापा यहां जॉब करते हैं, ओएनजीसी में है, ऐसे। लेकिन मैं यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि दोज पीपल हु आर डूइंग जॉब्स, उनके लिए ये जनरल एंट्रीज नहीं है प्लीज। ये जो अकाउंटिंग है उनके लिए नहीं है। दोज हु आर इन जॉब्स, इट इज मेंट फॉर बिजनेसमैन who do who does business. And what is business? Activity done by the businessman on regular basis for the purpose of earning profit is called business. Although business includes industry like manufacturing and commerce, both. So the person who is indulged in manufacturing or in buying and selling of goods or services, they are all called businessmen. Like those who have got factories, those who have got shops, those who have got a shops in the market, they are having into repair business. So we include them in businessmen. Obviously, they do business. So business includes industry and commerce, and a businessman earns by manufacturing, by buying and selling, by providing services, etc. Lot of activities he can perform. अब आता है बच्चों, ये तो हो गया व्हाट इज अ बिजनेस। अब मेरा अगला पॉइंट है बच्चों, बहुत बेसिक लेक्चर है ये। एक वर्ड आता है बच्चों, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। आर टू बी रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजैक्शन को बच्चों रिकॉर्ड करना होता है। Obviously, why? Because businessman can forget, he wants to know his profit or loss. So that is why every businessman says, yeah, why I'm not a foolish person, a fool. I have to make record of my business transaction. People come and buy on credit. I may forget. तो मैं तो लिखता हूं. And if you are writing like goods bought, goods sold, it is not a
accounting language. So as there are certain way, like suppose if you speak English, then you have some grammar rules. When you record business transactions, there is a rule called debit and credit, which is called double entry system. There is a methodology. There is a methodology called double entry system. For recording business transaction. There is a methodology called double entry system for recording business transactions. Like, there are grammar rules in English, so we have adopted them. If suppose I say that I am coming, so somebody says, why did you use the word am? So I say, यार English में there is a rule that I के साथ am लगता है, and we के साथ are लगता है, he के साथ is लगता है. These are grammar rules. He is a singular, that's why we use is, and we are plural, so we are using are. So these are rules now. That's why you use it, and you are comfortable in that because you have learned those rules. यही लॉजिक इधर अकाउंटिंग में बच्चों लगता है, डबल एंट्री सिस्टम में, कि क्या डेबिट और क्या, ये डेबिट और क्रेडिट एक वैसे ही एक लैंग्वेज है. सपोज I want to show how the entries are written. What is the method? So here is a date. Then we have a ledger folio. Generally, abhi to I'm, because it's very beginning, so I'm showing you how to write. Otherwise, we write very freely. See, if I write capital brought in, so we write cash account debit to capital account credit. Okay, suppose the capital brought in by the proprietor. I'll tell you the vocabulary used in accountancy because these have got lot of terms which are like vocabulary relating to accounts, terminology related to accounts. Here we narrate, narration, capital brought in. Now this is a technique. This debit and credit का मतलब क्या है? बच्चों जैसे बस एक सेंटेंस को कंप्लीट करने का एक तरीका है, तो एक के साथ डेबिट लगाना है, एक के साथ क्रेडिट लगाना है. और जो ये क्रेडिट वाला है, क्रेडिट है, इसके सामने क्रेडिट नहीं भी लगाते तो चलता है, बिकॉज जो डेबिट है वो डेबिट है, तो ऑपोजिट है वो क्रेडिट है. और ये अमाउंट डेबिट, अभी पूरा मैं समझाता हूं, और ये अमाउंट क्रेडिट है. इट मीन्स देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. If I said capital brought in by proprietor, who is the proprietor? Proprietor is the owner of the business. If suppose a person is having a shop, तो the shop का owner हम लोग बोलते हैं मालिक कौन है, who is the owner? तो वो जो shop का owner होता है उसको हम बोलते हैं कि ये मालिक है. तो वो जो पैसा लगाता है बिजनेस में, that is called capital. Money which is in, obviously you can think you are not a small child. लाइक जो भी बंदा बिजनेस में पैसा लगाएगा वो पैसा तो मालिक का लगेगा ना, शुरू तो बिजनेस उसी से होएगा. तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल, व्हाट इज ब्रॉट इन बाय द प्रोपराइटर. एंड वन मोर थिंग, दीज अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस. तो सबसे पहले तो जो बहुत बेसिक टर्म है, देखो सबसे पहला वर्ड मैंने क्या लिखा है, मैंने अकाउंटिंग शुरू करने के लिए आई हैव ड्रॉन योर अटेंशन टुवर्ड्स बिजनेस, कि बिजनेस में अकाउंटिंग होती है. तो अकाउंटिंग क्या है वो बाद में जानना है, पहले ये जानना है कि बिजनेस क्या है. फिर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी है, वो बिजनेस है, दैट्स ग्रेट. सो फिर उस बिजनेस में एंट्रीज होती हैं, क्योंकि बिजनेसमैन वांट्स टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसलिए हम डेबिट एंड क्रेडिट को यूज करते हैं. ओके, अब ये टेक्निक क्या है, एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है. कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, ये मैं अभी आगे सिखाने जा रहा हूं. ठीक है,
अब आता है बच्चों, इसको लिखना कैसे है? डेबिट को इन शॉर्ट क्या लिखते हैं? डेबिट इन शॉर्ट वी राइट डेबिट, क्रेडिट इन शॉर्ट वी राइट क्रेडिट। ओके, अकाउंट को इन शॉर्ट वी राइट अकाउंट। एंड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक there is a method called double entry system. Every business transaction affects two accounts, two ledgers, two item. Like कैसे? Look, cash and capital. One account is cash, it is called account. मतलब like account के भी दो मतलब है, account तो लगता ही है, इधर भी cash, cash is an account, capital is an account. So this 5 lakh brought into business by the businessman, तो ये रिकॉर्ड हुआ कैश एंड कैपिटल, इसके दो नाम हो गए। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, one account is debited, another account is credited. One account is debited, another account is credited. It is called double entry system. It was propounded by a scholar called Luca Pacioli long years back. He made it, he propounded. He propounded double entry system. Now the point is, ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं आप एक और चीज पे आ रहा हूं, आप इमेजिन करो, और एक और चीज है, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट लाइन, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, all business transactions are recorded in the books of business. Accounting treats business as a separate entity, separate from ऑनर। इसको सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। जो एंट्री, जो अकाउंटिंग है, ये ट्रीट करती है प्रोपराइटर को अलग और बिजनेस को अलग। अब बच्चों, यदि मैं कुछ चीजें और आगे बढ़ता हूं, अभी मैं कुछ टर्मिनोलॉजी भी सिखाऊंगा। अब सपोज करो, आप इमेजिन करो, कोई एक शॉप को इमेजिन करो। देयर इज अ शॉप इन द मार्केट, देयर इज अ बिजनेसमैन, he is inside the shop, he has got many showcases, many fixtures, fitting, fan, AC, showroom, computers. He is sitting inside. You went to his shop, you demanded some goods, he gave it to you, you gave him money. Now imagine this man has got, look, think of his shop, imagine a shop, any shop in your mind. There are few tangible things. Now I'm gradually telling how to debit and how to credit, and what to debit and what to credit.
There are few tangible things like goods, furniture, AC, computer, showcase. His vehicle is there, although parked outside. Got it? And these are the tangible things you can touch and see. You can touch and see. We call them, all of them, as real account, except this, because this is meant for sale. So despite that it is real, I shall put in the category of nominal because of some reason. Otherwise it is also real. So we call them real account. Real account means reality mein those things exist. You can touch and see. Furniture is there, AC is there, computer is there, showcase are there. There may be lot of other belongings. He may have a cash box. He must be having cash. All these we put them in the category of real account. पहले हम उसकी शॉप्स के बारे में 3 चीजें सोच लेते हैं. फिर उसके यहाँ पे वो जो शॉपकीपर खुद है या कोई इंस्टीट्यूशन से वो उधार माल बाय करता है या सेल करता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में प्रोपराइटर खुद आ जाएगा, वो जो शॉपकीपर है, और आप भी आ जाओगे यदि आप उससे उधार माल खरीदते हो. कस्टमर हो आप, और कोई सप्लाई उसको करता है बंदे, कोई उससे उधार खरीदता है, बाय करता है. तो ये सब पर्सनल अकाउंट है. और उसका जो एक बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये भी पर्सनल अकाउंट है. उसकी ओएनजीसी में सप्लाई जाती है, ये भी पर्सनल है. इंस्टीट्यूशन का नाम है एन मैरी स्कूल इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज एन इंस्टीट्यूशन. द्रोणा इंटरनेशनल इज अ पर्सनल अकाउंट. सेंट जोसेफ अकेडमी इज अ पर्सनल अकाउंट. समर वैली इज अ पर्सनल अकाउंट. These are the name of institutions. State Bank of India is a personal account. DAV PG College is a personal account. Ram, Sham, Mohan, Sita, Geeta, Aman, Guneet, all these are personal account. So either they are natural person or institutions. They are all personal. We call them personal account. Now imagine of that shopkeeper who is sitting in his shop. There is a fan working. These are the summer days, so the fan is working, and obviously when fan is there, electricity bill will come. The person is having his mobile, which must be carrying a SIM and a connection, internet also. That is again causing some expenditure. That is a nominal account. So when you run a business, you have the third thing is called nominal account. Like these are what? Expenses, incomes. Like when you sell goods, sale of goods is income, purchase of goods is expense. Electricity bill is expense. Telephone bill, internet charges is expense. अब एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं. थोड़ा क्या पढ़ रहे हैं हम? What we are studying? पहला we are studying basics of accounting. Great. Why the accounting has got a linked with business? As you will say, sir, अभी तो आपने बोला कि जो बिजनेस होता है वो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कोई एक्टिविटी होती है, और उस बिजनेस में हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब कोई कहेगा सर क्या आप ये बता सकते हो सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, सपोज किसी के पापा की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के रिपेयर्स की शॉप है, तो हम उनसे पूछते हैं क्या नया इलेक्ट्रिकल डिवाइस मिलेगा? वो बोलेंगे नहीं बेटा मैं रिपेयर करता हूं, नए लेने के लिए मेरे पास नहीं है, किसी और शोरूम में चले जाओ, मैं तो रिपेयर करता हूं. किसी के पापा का कुरियर का काम है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है. कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, सामान नहीं बेच रहा है वो.
उनको भी बिजनेसमैन बोलते हैं। तो ये सब लोग जो सामान बेच रहे हैं, वो जो सामान बना बनाया ला के बेच रहे हैं, वो भी बिजनेसमैन है। और जो बना रहे हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, वो भी बिजनेसमैन है। और जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो भी बिजनेसमैन है। अब आगे बात आती है, बिजनेसमैन कुछ लिखेगा, कुछ करेगा, डेबिट क्रेडिट कुछ रिकॉर्डिंग करेगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल करेगा सर, नहीं तो वो भूल जाएगा, उसको नुकसान होएगा। सो नाउ द पॉइंट इज, ये जो लिखना है, क्या हमें लाइनों में लिखना है? गुड्स बॉट ऐसे, गुड्स सोल्ड नो, ऐसी लाइनों में नहीं लिखना है। फिर कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। गुड्स बॉट है तो इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्रेडिट लिखते नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूं इनिशियली। आगे जाके बंदे समझ जाते हैं कि यार जब पहले वाली लाइन में डेबिट लिखा है तो दूसरे वाली लाइन में क्रेडिट लिखना है। अब एक सवाल और यहां पे आता है, सर ये डेबिट एंड क्रेडिट का क्या मतलब है? एक्चुअली देखा जाए तो ये एक अकाउंट को दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक लाइन को डेबिट यूज करते हैं, दूसरी को क्रेडिट। एक्चुअली ये डिस्टिंग्विश करने के लिए है, और आगे जाकर ये लेजर की साइड बन जाती है। जैसे एक लेजर हम बनाएंगे, अभी एक लेजर एक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है। जब हम लेजर बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड को लेजर की क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इस डेबिट एंड क्रेडिट का कोई क्लियर कट, जैसे इंग्लिश के वर्ड का कोई मतलब होता है, परचेजेस मतलब बाइंग, कैश इज कैश, द करेंसी ऑफ द कंट्री। बट डेबिट एंड क्रेडिट का इटसेल्फ कोई मतलब नहीं है, बस वो एक सेंटेंस के कंप्लीशन का एक तरीका है कि पहली लाइन में डेबिट आएगा, उसके नीचे वाली लाइन में क्रेडिट आएगा। और ये जो दो साइड को आइडेंटिफाई करना है, परचेजेस और कैश को, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, तो एक उन्होंने मेथड बना दिया, दैट इज कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट टेक्निक बना दी। और ये लगनी है, मतलब डेबिट के साथ डेबिट लगाना मैंडेटरी है, क्रेडिट के साथ क्रेडिट वर्ड लिखना मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि जो भी बंदा जरा सी भी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जानता होगा तो वो यही बोलेगा, सर जिसके नाम के साथ डेबिट लगा वो डेबिट है, और जो जिसके साथ कुछ टू लिखा है और क्रेडिट नहीं लिखा तो वो क्रेडिट है। अब सपोज ये टेक्निक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर आता है गुड्स सोल्ड, अभी ये टेक्निक मैं सिखाने जा रहा हूं। अगली टेक्निक है, जैसे इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्रेडिट लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आपने दूसरी एंट्री कर दी। अब इसमें गुड्स सोल्ड में कैश, एक आइडेंटिफिकेशन कैश है, दूसरा अकाउंट का नाम सेल्स है। गुड्स बॉट में परचेजेस एंड कैश है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, कोई भी, पहली बात मैं बार बार बोल रहा हूं, इट शुड बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो जो चीज है क्या होनी चाहिए? बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। जैसे उसने दिया सपोज वेजेस, जो मजदूर को हम पेमेंट करते हैं, मजदूरी देते हैं, उसको वेजेस बोलते हैं, वेजेस पेड। तो इसमें दो नाम पहचानने हैं, एक वेजेस और एक पेड कैसे होता है, कैश। तो वेजेस एक्सपेंस है, कैश रियल अकाउंट है। अभी मैं समझाने जा रहा हूं। तो एक पक्का इनमें से डेबिट होएगा और एक क्रेडिट होएगा। वो कैसे होएगा वो मैं रूल समझाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में जैसे ही हमें कोई नाम, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। अब जैसे पापा शॉप पे हैं, एक वर्कर कोई कुछ काम करके गया शॉप पे, पापा ने उसको मजदूरी दी, तो उसको क्या बोलेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में? वेजेस पेड बाय प्रोपराइटर। तो वेजेस इज एक्सपेंस, कैश इज कैश। सो इसकी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आपका बच्चों ये जवाब आएगा, सर ये आपको तो आता है तो आप इसको लिख ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। बच्चों आपको भी एक दो घंटे सीखने के बाद ये आ जाएगा बहुत आराम से, वेरी इजीली। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें अब आता है, अब मैं आगे सिखाता हूं,
इतना आपको समझ आने लग गया कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन लेनी है, बिल्कुल ठीक। फिर क्या करना है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट, दो नाम आइडेंटिफाई करने हैं, और वो दो नाम बड़े आसानी से देखो। अब मैं बोल रहा हूं गुड्स परचेज्ड, ठीक है, तो गुड्स परचेज एक तो बच्चों गुड्स ही हो गया, तो इसको गुड्स की जगह परचेजेस बोलते हैं, क्लियर। और दूसरा नाम हो गया कैश। सर गुड्स कैसे खरीदोगे, या तो उधार या नगद। अब मान लो जब कुछ नहीं लिखा हुआ, बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ, तो नगद खरीदा होगा, कैश आ गया। तो एक अकाउंट अपने आप पहचाना गया, परचेजेज और एक कैश। अब इसमें बच्चों रूल लगा दो, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, बस ऐसे करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। अब मैं बोल रहा हूं कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो एक आएगा बच्चों कैश और एक आएगा कमीशन, ठीक है। अब ये दो नाम आइडेंटिफाई हो गए, एक डेबिट हो जाएगा एक क्रेडिट हो जाएगा, वो तो टेक्निक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैसे होगा अभी बताने जा रहा हूं, जस्ट कीप पेशेंस। बस मैं उसको आपके अंदर वो इच्छा जगा रहा हूं कि आपको समझ आए कि अच्छा ये दो नाम भी पहचानना एक काम है। अब मैं बोल रहा हूं फर्नीचर बॉट फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, फर्नीचर मोहन से खरीदा, तो बच्चों दो नाम क्या हो गए, एक तो फर्नीचर थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में आने लगा होगा, और दूसरा मोहन। मोहन कौन है, अभी आपने बताया सर पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर कौन है, किस कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट में। अब जैसे आप इंग्लिश सीखते थे तो हम बोलते थे ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें था लगा हुआ है, पास्ट की इवेंट है। ये सर बोल रहा है फ्यूचर में ऐसा होगा, तो हम बोलते थे ये फ्यूचर टेंस है, मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट, ये प्रेजेंट टेंस है। ऐसे यहां पर तीन तरह के लेजर्स हैं, तीन तरह के अकाउंट्स हैं। अब देखिए बच्चों ये तीन अकाउंट्स क्या हैं, जो इसका बच्चों क्लासिफिकेशन आता है वो इस तरह से आता है। पहला रियल अकाउंट, ये बिजनेस को ध्यान में रख के सोचना है। दोज थिंग्स विच कैन बी सीन, विच आर टेंजिबल, those things which can be seen, which are tangible, are called real account. ये सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, these items are used in business. Business. C. Furniture, shop premises, office building, cash, ऑल्दो गुड्स है बच्चों, बट मुझे मजबूरी है क्योंकि गुड्स हम गुड्स का काम करते हैं, इसलिए उसको नॉमिनल में लेना पड़ेगा, उसका नाम बदल जाएगा। फर्नीचर, शॉप, ऑफिस बिल्डिंग, कैश, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, मोबाइल, मोबाइल फोन मतलब, वेइंग मशीन जो आपके आगे शॉप पे है। मैं इमेजिन कर रहा हूं ना शॉप में क्या होता है, ये सब बच्चों रियल अकाउंट है, ऑल रियल, ऑल रियल अकाउंट। ओके, अब आता है नो प्रॉब्लम, रियल है। इसमें एक रूल है, रूल ये डेबिट क्रेडिट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा रूल है। और ये कहां पर, बिजनेस प्रेमाइसेस में। कम्स इन गोज आउट,
विद इन द बिजनेस प्रीमाइसेस करना है। ये कम्स इन गोज आउट कहां पर देखना है? घर पे बिल्कुल नहीं, बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस बिल्डिंग के अंदर। सर ये आपका एक बिजनेस का एरिया है, यहां पे एक गेट होगा, कहीं तो एंट्री होगी ना। अब यदि यहां से फर्नीचर अंदर आया, ये शॉप है, तो केम इन हो गया, कमिंग इन हो गया। और यदि यहां से कुछ बाहर गया, कैश बाहर गया, तो गोइंग आउट हो गया। अब जो गोइंग आउट हो रहा है उसे क्रेडिट कर दो, और जो कमिंग इन हो रहा है उसे डेबिट कर दो। क्या मुश्किल है भाई? छोटा बच्चा भी बता सकता है, अरे सर ये तो शॉप के अंदर आ रहा है, शॉप के बाहर जा रहा है। कमिंग इन साइड बिजनेस प्रीमाइसेस, गोइंग फ्रॉम बिजनेस प्रीमाइसेस, ये ऐसे सोचना है। कमिंग इनसाइड बिजनेस प्रीमाइसेस, going outside business from business premises। एक तो ये रूल है। अब आ जाओ बच्चों, दूसरे बंदे कौन होते हैं? पर्सनल अकाउंट, ये होते हैं बच्चों ह्यूमन बींग्स, नेचुरल पर्सन। राम, श्याम, हरि, राधा, एटसेट्रा, ये बंदे हैं, इंसानों के नाम हैं। और इंस्टीट्यूशंस नेम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ओएनजीसी, डीएवी कॉलेज, एन मैरी स्कूल, समर वैली, एसजे, वेलम्स, होप टाउन, ये सब क्या हैं? किसी बंदों के नाम है। ओएनजीसी है कोई, मैं भी ओएनजीसी से मिलके आता हूं। आप बोलोगे सर कैसी बातें करो, ओएनजीसी कोई बंदा है, कोई है वहां जो खड़ा हुआ है, जाके मिल लोगे? ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, दीज आर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इनमें भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, इनमें भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। क्या रूल जो है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगेगा। अब छोटा सा एक एग्जांपल, अभी इन दो में फिर तीसरा रूल बता रहा हूं। बुक्स ऑफ हरि, हरि इज द नेम ऑफ प्रोपराइटर। फर्नीचर, ध्यान से समझना है, बॉट, ये बिजनेस के लिए ये, फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट 10,000 का, उसने दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा। चेयर टेबल फर्नीचर कुछ चाहिए होगा, जब शॉप में भी तो चेयर टेबल रखेगा, लोग कहां बैठेंगे? देखो ध्यान से, एक तो बच्चों इसमें फर्नीचर है और दूसरी पार्टी गोपाल है। फर्नीचर जो है ध्यान से रियल है, गोपाल पर्सनल है। बंदे का नाम पर्सनल होता है, फर्नीचर रियल है। अब मुझे बताओ, फर्नीचर और गोपाल में रियल की दोनों लाइनें रिकॉल करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप बोलोगे सर फर्नीचर रियल अकाउंट है, ये तो पक्का कमिंग इन फिट हो रहा है इस पे। पहले वाली लाइन लग रही है, गोपाल इज पर्सनल, नाम यूजिंग टू वर्ड्स, गोपाल इज रिसीवर और गिवर। थोड़ी सेंसिबिलिटी लगाओ, इस लाइन को पढ़ो। फर्नीचर बॉट फ्रॉम गोपाल, तो गोपाल फर्नीचर का रिसीवर है या गिवर है? आप ही के मन से बात निकल रही होगी सर वो गिवर है।
तो गिवर क्रेडिट होता है। तो एक रूल, एक ही तो ये वाली लाइन लग गई, सेकंड वाली लाइन पर्सनल अकाउंट की, और रियल अकाउंट की पहले वाली लाइन लग गई। तो ये रियल की पहली लाइन हो गई, हम लोग इसको शॉर्ट में कभी कभी आर बोल देते हैं, और ये रियल की सेकंड लाइन हो गई। आप पूरी लाइन बोल लो, तो ये रियल की वन लाइन लग गई, और पर्सनल की ये वन लाइन है, ये पर्सनल की टू लाइन है। तो ये बच्चों पर्सनल की जब एक की वन लग रही है, तो दूसरे वाले अकाउंट की सेकंड लाइन लगेगी। तो ये जैसे रूल होते हैं, मैं वही रूल सिखा रहा हूं। अब एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। अब क्रेडिट लिखना लिखो, अभी बोला मैंने लिखने की जरूरत नहीं होती है। 10,000 डेबिट के सामने ये डेबिट है, तो ऐसे मैच कर दो, डेबिट के सामने डेबिट, इधर क्रेडिट है तो इसके सामने ये क्रेडिट आ जाएगा। अब एक बार फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और गोपाल अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो ये फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा और गोपाल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। फर्दर जब इसकी आगे फर्दर रिकॉर्डिंग होगी, इस तरह से बच्चों हम ये डेबिट और क्रेडिट को डिसाइड करते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें अभी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं। अब देखो आगे, एक तीसरा नाम रह गया, वो भी कर लेते हैं। एक बच्चों क्या होता है, हर चीज में कभी कुछ दुकानों में खर्चे बहुत होते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट होता है बच्चों, वो क्या होता है, when we run our business, various types of expenses are incurred. So that business is run smoothly. We can't run our business without electricity, water, repair. We can't run our business without spending money on various expenses such as wages, electricity bill, water bill, staff salary, repair, cleaning, carriage, theli bhada, etc. All these things are called expenses. All are expenses. And बच्चों remember, इसमें जो लाइन आती है वो क्या आती है, वो सुन लो। डेबिट expenses and losses, credit incomes and gains। ये अब कोई कहेगा सर इनका मतलब क्या है, बताया तो अभी, कुछ तो एक्सपेंस का तो बता दिया। अब देखिए लॉस क्या होता है। सपोज बच्चों लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, बाय थेफ्ट, स्टीलिंग, थीफ, थेफ्ट, उसको एक वर्ड बोलते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। फिर आता है बच्चों इनकम्स क्या होती है, सेल ऑफ गुड्स इज इनकम। सर दुकान में बैठा हुआ बंदा मेन कमाई क्या करेगा, इनकम।
और एक्सपेंस में एक चीज और लिख लो, परचेज ऑफ गुड्स को भी क्या मानते हैं? एक्सपेंस। हालांकि आपके दिमाग में आएगा सर परचेज ऑफ गुड्स तो रियल है, बट सर हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? इज नॉमिनल। डिस्पाइट दैट इट लुक्स लाइक रियल, बट इसको बच्चों एक्सेप्शनली नॉमिनल में डाला हुआ है। बिकॉज बच्चों परचेजेस जो है वो गुड्स की है, गुड्स टेंजिबल है, और जैसे विच कैन बी टच्ड, इट कम्स इन गोज आउट है। लेकिन बच्चों उसको क्योंकि हम बिजनेस उस चीज में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बंदे की दुकान पे गए, कपड़े की दुकान है, तो क्लॉथिंग जो वहां पड़ा है क्लॉथ, वो उसका गुड्स है, तो वो गुड्स जो क्लॉथ शोरूम में लगा हुआ है वो गुड्स है, तो वो उसने खर्चा किया, अब वो उसको बेचेगा प्रॉफिट पे तो कमाई करेगा। तो इसलिए वो जो परचेज ऑफ गुड्स है रियल होने के बाद भी नॉमिनल है। फिर आता है बच्चों इनकम में आता है सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव्ड ऑफ गोडाउन, रेंट ऑफ गोडाउन रिसीव्ड, ये कमाई हो रही है। कमीशन रिसीव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव्ड यदि डिपॉजिट कहीं करा है, ये सबको हम बोलते हैं लिटरली अर्निंग। अर्निंग, बिजनेसमैन यही सब कमाई करता है। आप कभी भी किसी के पेरेंट्स बिजनेस में होंगे तो बोलेंगे सर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज भी कमाई है। आप कोई रिपेयर कर रहा है लोगों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, तो रिपेयर करता जा रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, उसके खर्चे निकलेंगे, कमाई हो रही है उसको, वो मेहनत कर रहा है। हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलता है। हम लोग कुछ कमीशन में सामान बेचते हैं तो हमें कमीशन मिलता है। ये सब इनकम्स होती है। अब आता है बच्चों गेन्स, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी आइटम, इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये जो हमारा मेन रूल है ये क्या है, एक बार फिर से देख लो। हैव अ लुक एट दिस अगेन प्लीज, ध्यान से देखो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। अब बच्चों कोई कहेगा सर कैसे पहचानना है कि ये रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है? देखिए रियल का मतलब है बच्चों टच एंड सी, एक्सेप्ट गुड्स। बस किसको किसको एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन गुड्स। डिस्पाइट दैट आई टोल्ड यू इट लुक्स लाइक रियल, बट इसको हम नॉमिनल मानेंगे। एक्सेप्शन इज गुड्स। अदरवाइज टच एंड सी में क्या क्या आएगा? फर्नीचर, मशीन, अभी तो लिखा मैंने, कंप्यूटर, शोकेस, कार, बिल्डिंग, लैंड, कैश, ये सब रियल है। जैसे ही रियल आएगा आपके माइंड में ये लाइन चलनी चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस। और यदि मैं बोलूं ये पर्सनल आ रहा है तो क्या लाइन चलनी चाहिए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और अगर जो मैं बोलूं ये नॉमिनल आ रहा है तो क्या लाइन माइंड में रन करनी चाहिए? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो नाम पहचानने हैं। उनके दो नाम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करना है? एक को जो रियल और पर्सनल में जो आपने नाम पहचानने हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें कौन सी लाइन अप्लाई हो रही है। टोटल 6 ही तो लाइनें हैं। अरे 6 से तो लाइन है बच्चों जैसी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो 6 लाइंस तो हैं। रियल की कम्स इन गोज आउट है, पर्सनल की रिसीवर और गिवर है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, एक की पहली लाइन लगती है तो दूसरे की दूसरी लगती है, तो दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना। यदि आपने डेबिट को ठीक से डिसाइड कर लिया और दो नाम सही से आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? अरे सर ऑब्वियसली जब एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरे ने तो पक्का ही क्रेडिट होना है, इसलिए सर इसकी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए बुक्स ऑफ हरी, जैसे मैंने बोला मशीन परचेज्ड, मशीन बॉट, तो बच्चों 10,000 की मशीन रियल, और कैश, अरे वाह ये भी रियल। सर कैश तो सबसे सुपीरियर रियल है और मशीन भी रियल। अब बच्चों दोनों लाइनें रियल की माइंड में रन करनी शुरू कर दो, एकदम बढ़िया। बोथ लाइंस
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप मुझे खुद बताओ, मशीन में बिजनेस प्रेमाइसेस के अंदर क्या आएगा और क्या बिजनेस प्रेमाइसेस से बाहर जाएगा? कैश जाएगा बच्चों, गोज आउट, तो पक्का क्रेडिट होगा। मशीन कम्स इन आएगी तो डेबिट होगा। अब मान लो आप ये बोलो, आप में से किसी के पेरेंट्स बिजनेस करते हो, कोई ये बोले आज मेरे पापा ने शॉप के लिए रेफ्रिजरेटर लिया, तो शॉप के अंदर अब क्या आएगा? रेफ्रिजरेटर आएगा, और शॉप से बाहर क्या आ जाएगा? कैश जाएगा, क्योंकि दोनों रियल निकले ना। अब इसको लिखने का तरीका, इधर तो डेट आएगी, मान लो 10 जनवरी लिख दी हमने, यहां आएगा मशीन अकाउंट डेबिट को डीआर लिख देते हैं, ऐसे अमाउंट के कॉलम होते हैं। इधर भी डेट से इधर पहले भी कट हो जाता है। टू कैश, टू का तरीका है, ये एक मेथड है, टू कैश अकाउंट। अब क्रेडिट लिखना है, लिख दो, डेबिट के सामने 10,000, डेबिट से डेबिट मैच कर दो, इधर डेबिट ऐसे पूरा ऐसे बन गया, कैश क्रेडिट, इधर क्रेडिट की अमाउंट आती है, इससे मैच कर दो ऐसे, ये 10,000, ये जर्नल एंट्री हो गई। बस इसी को अकाउंटिंग की बेसिक बोलते हैं, इससे एंट्रीज बननी शुरू हो जाती है। यहां इसकी नरेशन लिखते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन, समराइज्ड वे में। तो हम लिख देते हैं फॉर, ये एंट्री किस लिए है? फॉर मशीन बॉट। छोटी छोटे सेंटेंसेस बनाओ इंग्लिश के, जिससे मीनिंग क्लियर हो जाए समराइज्ड वे में। ये एंट्री बन गई, इसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूं सपोज कैरेज, लाइक वेजेस पेड, वेजेस बोलते हैं मजदूर को मजदूरी दी, तो वेजेस एक अकाउंट तो बच्चों वेजेस हो गया, और एक दूसरा अकाउंट क्या हो गया? कैश। कैश तो पक्का रियल है, इट कैन बी टच्ड एंड सीन। अब वेजेस एक खर्चा होता है, वेजेस टच एंड सी तो नहीं होता, बंदे का नाम भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन का नाम भी नहीं है, टच एंड सी भी नहीं हो सकता, तो सर ये पक्का एक्सपेंस है। फिर अभी अभी आप बोलोगे सर आप ही ने तो बताया, जब हम आराम से बैठ के काम करें और हमारे लिए लोग काम करें, हम उन्हें वेजेस दे, सैलरीज दे, ये मजदूर की मजदूरी को वेजेस बोलते हैं बच्चों। द वेजेस व्हाट यू गिव टू अ पर्सन हु डज फिजिकली हार्ड वर्क, दिस इज कॉल्ड वेजेस इन अकाउंटिंग। तो इट इज टर्म्ड एज एक्सपेंस, इट इज रियल। ये आ जाएगा बच्चों। अब एक्सपेंस में का रूल है डेबिट करो, और कैश में लगेगा गोज आउट, क्रेडिट करो। अब देखो बच्चों, जब आप रूल लगा रहे हो तो एक का डेबिट लग रहा है, डेबिट एक्सपेंसेस, तो सर अब दूसरे का डेबिट नहीं लगेगा। दूसरे में आप यहां ढूंढो, क्रेडिट द गिवर, ये तो लग नहीं रहा, ये देखो, ओ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश पे ये लाइन फिट हो रही है, क्या लगेगा? इस पे लगेगा बच्चों, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कोई आपसे पूछे रीजन बताओ, रट के बोल रहे हो, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये देखो वेजेस नॉमिनल होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश सर गोज आउट होता है, इसलिए क्रेडिट होता है, जब कैश कम्स इन होता है तो उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि वो रियल अकाउंट होता है। ये एंट्री बन गई, और यहां समराइज वे में लिख दो फॉर वेजेस पेड। अब आता है बच्चों एक और, गुड्स परचेज्ड, इसको मैं कल मंडे वाली क्लास में अच्छे से लूंगा। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड बच्चों इसको बोलते हैं परचेजेस, और परचेजेस को वैसे नॉमिनल बोलते हैं, लुक्स लाइक रियल, प्लीज ये एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन है बच्चों, कुछ चीज में रूल नहीं लगता, एक्सेप्शन होता है। तो ये परचेजेस में क्या रूल लगेगा? नॉमिनल, एक्सपेंस लग रहा है। गुड्स कैसे खरीदा होगा? सर कैश तो एक इतनी बड़ी शक्ति है, सारी दुनिया के काम इस कैश से होते हैं, तो सर ये रियल अकाउंट है, इसमें क्या रूल लगेगा? गोज आउट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, और क्या रूल लगेगा? गोज आउट। तो क्या करेंगे? सर एक अकाउंट तो डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं। क्यों करते हैं डेबिट? सर ऐसे कोई तुक्के मार रहा हूं मैं, एक्सपेंस है, खर्चा है, और कैश चला गया बाहर, टू कैश क्रेडिट कर दो।
और जो अमाउंट है वो अमाउंट यहां लिख दो। इधर यहां मान लो 50,000 है तो डेबिट की यहां और 50 यहां। अब ऐसे ही है गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट, ध्यान से, गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट तो जुड़ा ही होगा ना, प्रॉफिट इंक्लूडेड, तो प्रॉफिट तो नॉमिनल होता है। अब है 80,000 का गुड्स बेचा, तो एक तो गुड्स जब बेचोगे क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश फिर रियल हो गया। और गुड्स आपका सेल्स हो गई, गुड्स को सोल्ड को सेल्स बोलते हैं, बॉट को परचेज बोलते हैं, ध्यान से सुन लो। गुड्स बाय करा परचेज बोलते हैं, गुड्स सोल्ड करा सेल्स बोलते हैं। फर्नीचर परचेज करा उसको परचेज नहीं बोलेंगे, उसको फर्नीचर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फर्नीचर हमारी दुकान में बेचने के लिए नहीं है, जो सामान हमारी दुकान में बेचने के लिए होता है उसको परचेजेस बोलते हैं, और जिसको सोल्ड करते हैं उसको सेल्स बोलते हैं, जब उसी गुड्स को बेचते हैं। कैश रियल, सेल्स नॉमिनल। नॉमिनल बच्चों इनकम होती है, कमाई तो सेल्स के थ्रू ही तो होती है दुकानदारों की, तो इनकम क्रेडिट होती है। कैश में रूल लगेगा कम्स इन, डेबिट होता है। तो बच्चों मेरा काम बन गया, हिंट मिल गया मुझे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये मेरा काम बन गया। इसमें ये लो, तो मैंने एक को डेबिट कर देना है, एक को क्रेडिट, लेकिन मैं रीजन से कर रहा हूं सर। और एक बात और है कि बस एक अकाउंट की, देखो होने को बच्चों दोनों रेल के भी लग सकते हैं, और ये भी हो सकता है एक पर्सनल का लगे एक रेल का लगे, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे। अब आपने लिया कैश और एक लिया सेल्स, तो सेल्स तो हो गया नॉमिनल, कैश हो गया रियल। रियल में क्या लगा, कम्स इन, तो बस कम्स इन लगा, गोज आउट नहीं लगेगा, छोड़ो रेल को, बस एक लाइन लग गई, डेबिट डिसाइड हो गया। अब सेल्स इनकम है या खर्चा है? कोई भी बोलेगा सर दुकानदार के लिए थोड़ा लॉजिक भी तो लगाना है यार, सेल्स इनकम है तो इनकम है तो क्रेडिट कर दो, क्योंकि रूल में लिखा है क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो बच्चों इससे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ गया, तो रूल क्या लगा, कैश में क्या लगा, कम्स इन, सेल्स में क्या लगा, इनकम। नॉमिनल का रूल लगा, एन लिख दिया हिंट के लिए, इधर रियल का लिख दिया, रियल की पहली लाइन लग गई, नॉमिनल की सेकंड लाइन लग गई। ये बच्चों डेबिट एंड क्रेडिट है, और इसको नेक्स्ट क्लास में और इलेबोरेट करूंगा।